किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। Evening to everyone present here. First of all, I congratulate everyone who have made themselves available for the celebration of National Sports Day. The day 29th of August is celebrated as National Sports Day to pay tribute to Dada Dhyan Chand, the hockey wizard, the magician, the first sportsperson who changed the game. India's dominance in sports is known for this hockey wizard, Dada. Now let's hear views of our respected, our very own principal sir on the importance of sports and games. नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की ओर से खेलों की जो ये प्रतिस्पर्धाएं या खेलों का ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये केंद्रीय विद्यालय का एक सकारात्मक कदम है और इस विषय में जितनी बात की जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे 100 स्वस्थ युवा दो, मैं तुम्हें एक स्वस्थ भारत दूंगा। उद्देश्य क्या था? परिधि क्या है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ मन का निवास होने का मतलब है मस्तिष्क से कुशाग्र होना। यानी जो व्यक्ति अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उसका परिवार, उसकी पीढ़ी स्वस्थ रहती है, उसका ज्यादा पैसा डॉक्टर्स की दवाइयों पे खर्च नहीं होता है, निश्चित रूप से वो परिवार संपन्न होता है। हर व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए और ये एक ऐसी विधा है जिसमें हर कोई आनंद प्राप्त करता है। ये ऐसी विधा नहीं है जिसमें किसी का मन लगे या ना लगे। बच्चा चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हमारी आपकी उम्र का हो या बुजुर्ग भी हो। मिल्खा सिंह का आपने नाम सुना है, फौजा सिंह हुए, 100 इयर्स की एज होने के बाद वो मैराथन दौड़े। खेल एक ऐसी चीज है जो सबको पसंद है, क्योंकि एक मनुष्य जो है ये एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल और वो सारी हरकतें करता है जो एक जीव में होती हैं। गाय, भैंस, शेर, हिरण बाय बर्थ एथलीट होता है, शेर एथलीट होता है। उसी तरीके से हर व्यक्ति बाय बर्थ कोई ना कोई क्वालिटी लेके आता है। किसी का दिमाग तेज होता है, किसी का सुस्त होता है, लेकिन खेल के मामले में हर किसी को ये बात पसंद होती है। आपने अपने बचपन में अपने माता पिता से बहुत डांट खाई है कि खेलने नहीं जाने देते थे या हम छिप छिप के खेलने जाते थे, लेकिन खेलने जाते थे। खेल की सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति इसको दिल से पसंद करता है। आज भी जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो दर्शकों को देखकर यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पता नहीं भारत पाकिस्तान का मैच है या युद्ध है। हमने देखा है मुंबई में जब सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में हमने वर्ल्ड कप जीता, उस समय हमारे देश के युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबका हाल दिल का क्या था। खेल वो चीज है। Those were really inspiring words from our respected principal sir. It really gave me goosebumps. Now let's hear views of our dear students on COVID-19 fitness. Namaskar, myself Sonali Ipsita from class 7B. Today I am here to share few lines about COVID-19 fitness at home. So as we know, in this pandemic situation, a lot of people are facing so many problems. So to face this situation, we have to do physical exercises, yogas and meditation early morning and every day. So as we know, COVID-19 is mostly effective in lungs, which are respiratory system. So to take more oxygen, we have to focus on meditation, which gives us more oxygen from fresh air. So there are a lot of precautions which we should take in this situation for being safe at home. So now I am going to tell some of the precautions.
So first of all, clean your hands often. Cough or sneeze in your bent elbow, not in your hands. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Limit social gatherings and time spent in crowded places. Avoid close contact with someone who is sick or someone who is suffering in fever. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. And the most important one is wear masks and sanitize yourself as much as you can. And don't go outside without any emergency reason. Hope all will follow these precautions and hope all will be safe in their homes. Thank you. Good morning, everybody. My name is Simran Chandan of class 7 and I am going to deliver a speech on COVID fitness at home. COVID is cruel. It has shown its disastrous face with all-swallowing mouth to the whole mankind ruthlessly. The rich, the poor, the educated, the uneducated, the wise, the fool, the man, the woman, all without exception came under the plunges of COVID's octopus tentacle. COVID is really deadly as it erodes our breathing system with our lungs, which is the very root of our living life. Whole world, whole mankind started frantically to find the panacea of this deadly dawn, which halted the breath of every heart. The natural immune system is the only effective remedy so far. So we require to supercharge our immune system to improve, to boost our immune system and proper health. We should undertake regular exercises, systematic yoga, pranayam, and exercises with nutritious diets. How to maintain your fitness at home during this brutal time of COVID? In this COVID time, gyms and fitness clubs are prohibited because of the fear of profuse gathering. But we can simply keep ourselves fit and healthy at home by doing yoga, pranayam, regular exercises with a nutritious diet. In this harsh time, obviously we can take a risk to go outside for exercises, but this should not be a hindrance against our fitness. We should allow ourselves to transcend from the erstwhile events to something innovative, like doing yoga, going up and down within the steps of a building, skipping, jogging in the permitted road. Nutritious dense foods, vegetables, fruits, low-fat milks, beans, pulses, vitamins and minerals keep our health, maintain immunity level. Carbohydrate, low-fat, low-calories keep our immunity high is to exercise regularly. Moderate physical activity depending upon our age and physical condition. Means as a whole, we should do our work without breaking the norms of the government. Another important thing is we should do all these things with dedication, because anything done with dispersed mind will never get success. At last, I would like to say that we should be a little cautious in this time while keeping up our fitness intact. We should make best use of whatever available to us with minimum exposure to gather. Stay safe and thank you. Now it's time we all were waiting for. Let's hear inspiring words from the Olympian Shivpal Singh on National Sports Day. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवपाल सिंह ओलंपियन केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर के प्राचार्य शिक्षणगण और सारे विद्यार्थी भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस पर अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मैं एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, वर्ल्ड मिलिट्री गेम गोल्ड मेडलिस्ट, सैफ गेम मेडलिस्ट 29 अगस्त यानी आज के दिन पूरा देश हॉकी इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा है। आज मेजर ध्यानचंद का 170वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स अथवा राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन खेल के प्रति सभी को जागरूक करने, उसकी अहमियत के बारे में ज्ञात करने एवं लोगों के मन में खेल के प्रति उत्सुकता जागृत करने के लिए मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर ही कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। उन्होंने 1956 में
भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी में भारत को सबसे ऊंची स्तर पर ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 1926 से लेकर 1949 तक हॉकी खेला। अपने कैरियर के दौरान मेजर ध्यानचंद भारत को 1928 से 1932 और 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाब रहे। ऐसा दावा किया जाता है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से गेंद को छीन पाना नामुमकिन था। भारत के इस महान खिलाड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह जब हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद उनकी स्टिक में ऐसे चिपकी रहती थी जैसे मानो किसी ने उस पर चुंबक लगा रखा हो। उनके कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के सम्राट हिटलर ने उन्हें जर्मनी से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। जो मेरा टोक्यो का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज ये मेरा पहला ओलंपिक्स था। लेकिन मैं जिस वजह से, पहले तो मेरा जो दोस्त है नीरज, उसको मैं कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ, और पूरे भारत देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे इवेंट में जेवलिन में गोल्ड मिला और एथलेटिक्स का इतने सालों का ये सूखा जो है वो ख़त्म हुआ और ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार हमारे देश को मेडल मिला। लेकिन इससे बहुत खुशी है हम सबको, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि जो मैं अपना प्रदर्शन नहीं कर पाया वहाँ पे अच्छा, बिकॉज मेरे शोल्डर में पेन था। ताकि मैंने जितना ट्रेनिंग में कर रखा है 8623 से अधिक भी कर रखा है ट्रेनिंग में 8788, लेकिन कंपटीशन में मैंने एशियन चैंपियनशिप में जब सिल्वर जीता दोहा में, तो वहाँ मेरा थ्रो था 8623, इससे सिल्वर आया। और इस इतने पे ही ओलंपिक में भी इस साल सिल्वर मेडल था, लेकिन किस्मत की बात है जो मैं वहाँ पे नहीं कर पाया, मेरे पेन था शोल्डर में। बट मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरे दोस्त का मेडल आया गोल्ड। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आप सभी लोग हार्ड वर्क करें और अपने कोचेस की, अपने टीचर्स की बातों को सुने और अपने गेम, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। So, you see, now we clearly know why we celebrate National Sports Day and how much important it is. चलिए, आज हम सब लोग ये प्रण लेते हैं कि हम कम से कम एक गेम तो जरूर खेलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।